Thank you. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to this erudite webinar titled Physics and Spirituality as Next Grad Unification Iqbal Perspective. So basically this webinar is arranged by Iqbalian Society, who is working to forth the agenda and thoughts and ideas of Allama Muhammad Iqbal. Moreover, they are also working on bringing the Iqbal magazine, and they time and again arrange different sessions on Iqbal and his thoughts. So for this webinar, we have a personality who is a researcher, administrator, professor. He did his MSc in nuclear physics from GCU, worked with Dr. Abdul Qadir Khan, the co-founder of Pakistan's nuclear weapon, worked there as a lab researcher from 1980 to 85, worked as network administrator in Pan American Airlines, Miami, Florida from 1997 to 2001, taught maths in Bowers College from 2003, working there in administration from 2003 to onwards, and currently he is working there. So we have with us Sir Imran Khan. Welcome, sir, to the webinar, and thank you so much for taking your time. You're most welcome, everybody. Assalamu alaikum. Today's talk or lecture is about the physics and spirituality as the grand unification, and this would be in the perspective of Allama Iqbal. And when we start with his book, he wrote a book called The Reconstruction of Religious Thought in Islam. He had been studying the Western as well as the Eastern thought. And what he read in the Western thought was philosophy. And he read about the scientific advancement and discoveries. I would just want to read you a little bit from his book and see. He says that in his preface of the book, he says that Quran is a book of deed, the Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. And what he means here is that in the paradigm of new discovery, especially in the paradigm of new sciences like physics, quantum physics, it's very hard for a youth, for a person who has studied science, to accept anything beyond a reality which is not physical, by which he means that there are areas of uncertainty. We don't have to be very, what is the general paradigm is that what you can see and what you can observe in the three-dimensional space-time, that exists, right? And yes, anything beyond the space-time dimension is or time dimension is something false. So why would Iqbal think on those lines? He said that basically the human mind, which acts as a basis of our perception or cognition, is based on the brain. And what the new discoveries in science did was, especially quantum physics. मैं थोड़ा सा उर्दू में भी बात कर लूंगा, इंग्लिश में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. Perfect, sir. तो उसने इकबाल ने कहा कि जब उसने क्वांटम थ्योरी को देखा, तो उसने देखा कि क्वांटम थ्योरी का जो बेसिक है वो ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो रियलिटी को अफेक्ट करती है. यानी जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो एक पार्टिकल को जब हम देखते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है, नहीं देखते तो प्रोबेबिलिटी होती है. तो इकबाल के लिए ये एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज थी, खासतौर पे फिलोसफर्स के लिए, कि ये कैसे हो सकता है कि कोई रियलिटी नहीं है, बैक में कोई रियलिटी नहीं है. सो उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ वॉचिंग जो है, जब आप देखते हैं तो वो ऑब्जर्वर क्रिएट करता है रियलिटी. ऑब्जर्वर का बड़ा रोल है. तो दिस वाज इन 1928. उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में. उन्होंने कहा कि ये कुछ हमें लग रहा है कि ये कोई मिस्टिसिज्म की तरफ जा रही बात,
मिस्टिकल थॉट क्या है? मिस्टिकल थॉट उसमें ये है कि वो देयर इज सम रियलिटी, देयर इज एन एलियन यूनिवर्स। वो कहते हैं कि कोई ऐसा यूनिवर्स है कि जो फिजिक्स से बियॉन्ड है, और जो फिजिक्स से अगर बियॉन्ड है तो वो उसकी हमें कहाँ से तांते मानते कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से हमें पता चलेगा कि कोई रियलिटी बियॉन्ड फिजिक्स है, राइट? तो वो जो एक ऑब्जर्वर की जो रियलिटी क्रिएट करने की एबिलिटी है, उसको फिर फिजिक्स ने पढ़ा गया, फिजिक्स ने स्टडी किया। सो दिस मर्जर बिटवीन इकबालियन थॉट एंड क्वांटम फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग. So what he did is he said that he writes that the present moment is quite favorable for such an undertaking. Classical physics has learned to criticize its own foundations. वो कह रहे हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, स्पेशली न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो अपनी फाउंडेशंस पे ज़रब लगा रही है, कारी ज़रब लगा रही है. उसकी वजह ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे स्पेस एंड टाइम है, वो अब अपना वो खो रहे हैं, अपना असर खो रहे हैं कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है. यानी मेरा अगर टाइम है तो अगर मैं स्पीड पे यहाँ उठ के कमरे से दूसरी तरफ जाता हूँ तो मेरा टाइम बदल जाएगा, और इस तरह स्पेस भी मेरी बदल जाएगी. आप बैठे हुए यहाँ पे, आप मुझे सुन रहे हैं, आप उठ के चाय लेने जाएंगे तो आपका टाइम बैठने के टाइम से फर्क हो जाएगा. तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे थे फिजिक्स में, इल्लामा इकबाल भी उनको बड़ा एक शौक था और वो पढ़ रहे थे. तो उन्होंने कहा कि ये जो एक यानी जो बेसिक ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा है, मैटर की अपनी साख चेंज हो रही है, और मैटर जैसे हमने समझा था वो नहीं है, राइट? तो उन्होंने कहा कि एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियलिज्म which it originally necessitated is rapidly disappearing. तो उन्होंने कहा कि जो रियलिटी हमें नजर आ रही है वो बड़ी चेंज होती जा रही है, और the day is not far when religion and science may discover hitherto mutual unsuspected harmonies. तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये क्वांटम फिजिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट आया कि जी ऑब्जर्वर जो है वो करता है, क्रिएट करता है रियलिटी, इसको फिर आगे मजीद एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया गया, और जो कंक्लूजन वो ड्रॉ किया, उन्होंने ये कहा कि मॉडर्न साइंस जो है वो ऐसे हमें बातें बता रही है कि अब एक रिलीजन का जो बंदा है, रिलीजियस बंदा है, वो उसके लिए फर्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी आई है 1927 में, जब कॉन्शियसनेस फिजिक्स में आ रही है. तो वो किस तरह आ रही है, उसमें उन्होंने एक किताब पढ़ी इकबाल ने, जो कि आर्थर स्टैनली एडिंगटन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था एडिंगटन ने कि जो आपकी रियलिटी है उसमें अब कॉन्शियसनेस आ रही, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के असूलों में जब आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करते तो वो डिफरेंट बिहेव करता है. इसको 28 में इकबाल ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी एक अजीब चीज है, और कॉन्शियसनेस तो एक हम सुपरस्टिशन समझते हैं, सुपर नेचुरल समझते हैं, ये कैसे इसमें ऐड हो रही है. तो अगर हम जब मूव करते हैं, आगे चलते हैं, तो आर्थर एडिंगटन अपनी किताब में कहता है कि another charge against these lectures may be, उसने कुछ लेक्चर दिए थे ना जी, so he said that another charge against these lectures may be that of admitting some degree of supernaturalism, which in the eyes of many is something as superstition. तो अब ये एक चार्ज था साइंसदानों ने लगाया था, जो कि मजहब पे था कि मजहब जो है ये सुपर नेचुरल है और इसमें सुपरस्टिशन है. अब आर्थर एडिंगटन, अच्छा आर्थर एडिंगटन कौन था? आर्थर एडिंगटन वो पहला शख्स था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था जाके एक आइलैंड पे, कि जो उसने ऑब्जर्व किया था कि सूरज जब नहीं होता ना, तो उसने कोई पिक्चर ली थी और स्टार्स को उसने मैप किया था, लाइट को, और फिर उसने देखा कि एक सोलर एक्लिप्स हुआ है. तो वो जो कि चांद जो जमीन के दरमियान जो आया, तो चांद, तो वो फिर उसने देखा कि लाइट बेंड हुई है.
मतलब उसने देखा कि वो जो लाइट जो स्टार्स के पीछे से आ रही थी, पहले उसने स्टार्स को पहले पिक्चर ली, और जब पिक्चर ली तो वो बगैर सूरज के तो वो सीधी आ रही थी रात के वक्त। फिर जब उसने सूरज का जब सोलर एक्लिप्स हुआ तो वो जो लाइट थी उसने देखा कि वो बेंड हुई है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी भी अब ये प्रूफ कर रही है कि स्पेस एंड टाइम जुड़ा हुआ है। और इसमें आपका जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था कि स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट है, टाइम एब्सोल्यूट है, वो शेकी हो गया। इसको फिर आगे चल के इकबाल ने कहा कि जी ये जो इंसान का जो जिसे कहते हैं, उसने यहाँ पे आके उसने कहा कि सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि एक रिलीजियस एक्सपीरियंस भी है। और रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है ये असल में एक फॉर्म ऑफ नॉलेज ही है। इसमें भी आपको जो है डायरेक्ट एक इंस्पिरेशन आती है, और इसका ज़्यादा फंक्शन हार्ट का है, इंटेलेक्ट का है, यानी इंट्यूशन का है। और आगे चल के इकबाल ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज दैट द immediacy of this experience in this respect, it does not differ from the other levels of human experience which supply data for knowledge. वो कहते हैं कि ये जो experience intuition का, it is not different from other levels of human experience जो कि हमें डेटा सप्लाई करता है। और स्पेशली और all experience is immediate। और ये कहते हैं कि as regions of normal experience are subject to interpretation of sense data for our knowledge of the external world, so the region of mystic experience is subject to interpretation for a knowledge of God। तो वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है, जैसे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इंडक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा लेते हैं, डेटा से फिर हम कोई इन्फर करते हैं, लॉज इन्फर करते हैं। तो इकबाल कह रहे हैं कि एक और सोर्स ऑफ नॉलेज भी है जो कि हमें डेटा देती है और उसकी कॉग्निटिव वैल्यू है, वो कोई मैसेज देगी आपको। जैसे हम देखते हैं कि डिवाइन रेवोल्यूशन है, पूरे का पूरा जो एक प्रॉफिट को आता है, जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, और एक और भी ग्रुप है जिसको वो वली कहते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कि अब भी अल्लाह ताला से डेटा लेते हैं। और उसकी कॉग्निटिव कंटेंट से मुराद उसकी ये है इकबाल की कि वो एक मैसेज देता है उस बंदे को, उस शख्स को। तो ये जो मर्जर था ना जी, फिजिक्स का, साइकोलॉजी का, बायोलॉजी का, क्योंकि हम एज अ होलनेस में हम चीज़ों को नहीं ले रहे, हमने उसको बाइफरकेट कर दिया बिटवीन फिजिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी। इसको इकबाल ने फिर आगे जो कहा कि ये जो इल्हाम होता है, जैसे कश्फ होता है, ड्रीम्स होती हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। और इसमें भी चल के आगे फिर उन्होंने अच्छा हुआ ये था कि जो हमारे डिकार्ट थे, हमारा जो टेंजेंशनल हमने पास लिया फ्रॉम दिस होलनेस, पहले होलनेस में चीजें थी, तो इसको शुरू में वो कहते हैं डेमोक्रेटिस का भी एटम का मॉडल था, वो भी एक उसने बाइफरकेट किया। डिकार्ट ने भी आगे माइंड और मैटर को अलग किया, और ड्यूलिटी से वो नॉन ड्यूलिटी वाली बात में जो आती है उसको उसने बड़ा एक धचका लगाया डिकार्ट ने, जिसको आगे चल के उन्होंने कहा कि ये जो है। लेकिन अब जो ऑब्जर्वर आ गया ना जी, अब फिजिक्स में ऑब्जर्वर इस तरह आया कि एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्प्लिट। डबल स्प्लिट में ये होता है कि आप एक यानी इलेक्ट्रॉन या फोटोन को जब आप गन से भेजते हैं एक कार्डबोर्ड के ऊपर, उस कार्डबोर्ड में आप 2 स्लिट्स बनाते हैं, और आप देखते हैं कि उसके पीछे एक जैसे आपकी टीवी स्क्रीन है वो होती है। तो आप देखते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके 2 स्लिट्स में से बेवक्त, अगर जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते तो पीछे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, डार्क और वाइट उसका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है और एक जाके डॉट बनाता है पीछे। यानी आपने देखा होगा कि मैं क्या आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आपका टीवी है, आपने पीछे टीवी लगाया हुआ है और पीछे उसके आगे कार्डबोर्ड रख के 2 स्लिट बना दी हैं और एक इलेक्ट्रॉन गन से आपने भेजा है। जैसे आपका टीवी होता है, अंदर उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, कैथोड रे ट्यूब, वो जाके उस स्लिट से गुजरती है। तो आप उसे पहले कैमरा लगा दें। अच्छा, कैमरा लगाएंगे तो उसको पता चल जाता है किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को कि ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो, वरना अदरवाइज वो एक प्रोबेबिलिटी की शेप में है, एक वेव फॉर्म है, जो कि यानी वो तो ये भी कहते हैं कि वो वेव फॉर्म एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जाके वापस आ जाती है। और ये जो सारा होलनेस है, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बनता है। तो
तो ये जो अब नई चीजें जो आ रही थी, इसको हमारे सूफिया ने समझा, जैसे शेख अहमद सरंदी थे एंड इस बुक मकतूबात इमाम रब्बानी, तो उसमें भी उन्होंने काफी कहा कि एक स्पेशल ट्रेनिंग के थ्रू अ स्पेशल ट्रेनिंग वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ होलनेस। बाद में उस पर काम इब्न अरबी, शेख इब्न अरबी का था। तो फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी अब मर्ज इस तरह कर रही है कि देखते हैं कि इसमें जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, और ये हायर साइकोलॉजी है, इसमें विलियम जेम्स एक थे साहब, उन्होंने कहा कि दीज आर ऑल्टर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि एक सूफी को मिलती हैं। तो मिस्टिक कॉन्शियसनेस क्या है? इट्स रिच एंड विविड, एंड उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, बेसिकली हम इससे हट गए हैं, हमने फिजिक्स बायोलॉजी इसको पढ़ना शुरू किया और इस पूरे प्रोसेस को, होलनेस को रिड्यूस कर दिया। तो ये आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सामने चीजें आती हैं जिसमें हमें चाहिए कि ये जो एलियन यूनिवर्स हमारा यूथ नहीं समझ रहा है, आवर यूथ इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस एलियन यूनिवर्स because of the reason of that he has developed concrete thought and empirical thinking, induction, deduction. But अब ये कहा जा रहा है कि एक और method of abduction का भी, by which there is a way that we can get information beyond I mean mathematically भी है, जो कांट का भी थीसिस था, प्रायोरी ए प्रायोरी, कुछ चीजें हमें बगैर सेंसेस के आती हैं, कुछ डायरेक्ट सेंसेस से आती हैं, कुछ हमारी यानी वो होती हैं इंट्यूशन से आती हैं। तो इसको अब ये डिबेट जो है हमारे यूथ में बड़ी जरूरी है कि हम अपने यूथ में लेके आए, उनको बताएं कि जो हमारा रिलीजन है वो इट इज नॉट जस्ट हमारी रिचुअल्स के ऊपर, बट इट हैज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हिकमत, इल्म, एंड देयर आर मोर देन 750 वर्सेस which exhort Muslims to study biology, physics, chemistry, and even the wholeness which is coming in the form of Shahid Mashood. आप देखें कि एक सूरह बरूज है which says that think about शाहिद एंड मशहूद। शाहिद और मशहूद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक हमारे पास जो है वो आगे चल के अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम्स में आती है बात के, वो जो 99 नेम्स हैं उनकी जो इल्यूमिनेशन है उनके रेपुटेशन से, और अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें इल्यूमिनेशन देते हैं एक और किस्म की, जिसका साइंस से बढ़ के एक स्पिरिचुअल साइड पे वो लेके जाती है, और साइंस और रिलीजन को इस तरह मर्ज करती है। क्योंकि देखें एक आयत है कुरान की, सूरह अल इमरान की, इन्ना फी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फी खलक़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये इसका मतलब ये है कि द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड द अल्टरनेशन ऑफ नाइट एंड डे, देयर आर साइंस फॉर मैन एंड वुमन ऑफ अंडरस्टैंडिंग उलुल अलबाब। अब हमने उलुल अलबाब के जो कॉन्सेप्ट है कुरान में, इट हैज about 17 places, उसके different forms बताए हैं। On one hand they are thinking in the universe, in the structure of the universe। तो ये जो रेवोल्यूशन हमारे पास है, ये एक कह सकते हैं कि इसका मेथड हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है, इसको साइंस कैसे समझ सकती है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बड़ी पुरानी है। फिलो एक साइंटिस्ट है ग्रीक के, उन्होंने ये जो है बिब्लिकल जो उनकी पेंटो बुक्स थी उनको पढ़ा, फिर साथ उन्होंने रीजन को पढ़ा, तो उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो बड़ी पुरानी। फिलो ने उसको जो एक बूम आया या ब्लूम हुई, वो हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है, हमारी हेरिटेज है, जिसमें हम देखते हैं कि, और ये खाली सिर्फ हम लोग भी नहीं कर सकते बल्कि उनके यहाँ स्कॉलिस्टिक जो थिंकर है, रिलीजियस सेंट ऑगस्टीन थे, उन्होंने इसको देखे आप देखा, और फिर उन्होंने वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना जो इजराइल में और ग्रीस में थी, पहले इजराइल की क्या मतलब है, तो बुक ऑफ डैनियल थी और पेंटाक की 5 किताबें थी, उसको ग्रीक्स ने पढ़ा जब, जैसे फिर होता, तो उसको उन्होंने कहा कि यार ये खाली जो फिजिक्स है, दिस इज नॉट दी होल ट्रूथ, ये सारा कोई ट्रूथ नहीं है, बल्कि देयर इज समथिंग मोर। और खासतौर पे जो एक साइकिक प्लेन पे अब हमें बड़ी जरूरत है कि हम लोग इकट्ठे होके, we need neurobiologists, we need physicists, we need people from the सूफिया जिसे हम कहते हैं, उनको भी इकट्ठा करें और एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक सेंटर बनाएं, और अपना ये रिफॉर्म करें अपने आप को कि जी सिर्फ हम फिजिक्स पे बुनियाद बना के या बायोलॉजी पे बुनियाद बना के सारी हम जो स्ट्रक्चर आप लम्स में देख लें, आपके यूएमटी में देख लें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दैट। और इसको
अब इकबाल को देखे ना, उन्होंने 23 इयर्स की एज में किताब लिखी थी ऑन द यूनिटी ऑफ मैन, जो कि अब्दुल करीम जीली की किताब थी, इंसान कामिल। तो उसमें वो कहते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट यूनिटी, द पास्ट इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, उसमें लिखते हैं कि इज द ग्लोरियस मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। पहले उन्होंने एक्सप्लॉइट्स की मिलिट्री जो मुसलमानों की थी इस्लामिक हिस्ट्री में, एंड देन दे मूव टू फिलॉसफी, or they didn't have much time to think on philosophy, but then when the Islamic civilization started to stabilize and they built their own institution, then they rebuilt the smoldering edifice of science. उनका मतलब कहने का था कि जो स्मोल्डरिंग जो एडिफिस ग्रीक ने बनाया था वो स्मोल्डर हो गया, उसको यानी थोड़ा सा चंगारी को उन्होंने फिर उसको उजागर किया, और एक पूरा आप देखें उसकी किताब है रॉबर्ट ब्रेफो की रीमेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों ने एक बुनियाद रखी एम्पिरिकल मेथड की, और क्योंकि हमारे हाँ कुरान में इतनी इंस्ट्रक्शंस है, एक जगह है कि आपका जो सेंसेस हैं दे आर अकाउंटेबल टू गॉड, योर देयर आर गिफ्ट, आपको ज़हन दिया, कान दिया, आंखें दिया, दीज आर गिफ्ट, डोंट जस्ट लूज देम। सो जो हमारा एम्पिरिकल जो अवेकनिंग थी, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ साइंस, यानी वो आपको पॉइंटर्स देते हैं और उसमें एक लफ्ज में और पूरे लाइन में इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हम यानी विच इज वेरी स्ट्रेंज कि अगर हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज फ्रॉम सेल्फ परसेप्शन, तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अभी इधर लेके जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि इकबाल ने जिक्र किया कि हमने फिर वो जो यूनिटी पे उन्होंने देखा वादत में, और एक उन्होंने बताया कि जी जो साइंटिस्ट को जो अपनी लेबॉर्ट्री में एक इंट्यूशन आती है, इसी तरह को इस तरह को एक सूफी को आती है या स्पिरिचुअल आदमी को आती है, सो वो जो उसकी ट्रेनिंग जो है स्पिरिचुअल आदमी की इल्यूमिनेशन ऑफ द नेम्स हैं, डिवाइन नेम्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें फिर न्यूटन का भी काम है, न्यूटन वर्क मोर ऑन रिलीजन देन साइंस। ये शायद लोगों को नहीं पता, आप न्यूटन पेपर देखें। अगर एक सेंटर बन जाए जिसमें ये किताबें लाई जाएं और इनको एक फॉर्म दी जाए, तो इसमें हम लोग आगे चल के काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर मिस्टिक्स की बुक्स हैं, जैसे ज़ौकी शाह साहब थे, दिलबरा उन्होंने लिखी थी, विच इज अबाउट दी वोकैबुलरीज ऑफ सूफीज़्म, जो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें। इकबाल ने इन चीज़ों को सबको स्कैन किया, उन्होंने एम सरंदी और इनको ऐसे लोगों को पढ़ा, और साथ उन्होंने फिजिक्स के लिए एक साहब थे, उनको 22 years old एंड देन लेटर ऑन उन्होंने उनको से रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ी। तो हमारे सिर्फ साइंटिस्ट जो हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको खाली साइंस नहीं पढ़नी, बल्कि उनको जो पर्सपेक्टिव है रिलीजन का, और ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई है, क्वांटम थ्योरी आ गई है, जिसमें अब जो हमें देखना है कि ये इज देयर एनी साइंटिफिक बेसिस ऑफ इल्हाम, कश्फ और रोया, जैसे रोया हम कहते हैं। तो ये उनके पास एक मेथड है जो कि वो बातिन की स्टडी करते हैं, मराकबे के जरिए, तफक्कुर के जरिए, यानी जाहिर और बातिन और जाहिर को दोनों देखते हैं। ऑर्डिनरीली हमारे स्टूडेंट्स जो है वो जाहिर को देखते हैं और द सेंस परसेप्शन, इसको बड़ा जरूरत है कि हम आगे देखें, क्योंकि एडिंगटन भी वो बात कर रहा था 27 में कि जो मैं उसने टॉक एक बुक लिखी थी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, उसमें वो कहता है कि मेरे पे जो चार्ज लगाया जाएगा मेरे लेक्चर्स पे, दैट विल बी दैट दिस इज सुपर नेचुरलिज्म। क्योंकि वो जब उन्होंने डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट देखी, बोर और आइंस्टाइन की बड़ी लंबी डिबेट थी, बोर ने देखा, ये खासतौर पे क्वांटम फिजिसिस्ट ने, क्योंकि आप देखते हैं कि at the end of the 19th century it was thought that all the problems of physics have already been solved and it's just a matter of time that we won't be having much to think about physics. मगर उसके साथ 19वीं सदी में दो कॉन्सेप्ट बढ़े आए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स है, और वो फोटॉन्स को भी उन्होंने देखा कि E is equal to h nu, और उन्होंने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पे। और फिर आगे मजीद जो हमें आइंस्टाइन ने भी उस पर काम किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो हमारा जो पूरा सिस्टम बनता है, आप देखते हैं कि एक जो होती है आपकी लिफ्ट, उसमें यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटोन निकल के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो ये एक जो क्वांटम थ्योरी जब डेवलप हुई, तो उन्होंने देखा कि ये एक 3 किस्म की बातें कर रही है। एक में ये कह रही है कि एक पार्टिकल एक जगह से और जगह भी हो सकता है, सिर्फ एक जगह नहीं, एक इंसान बैठा है यहाँ पे तो दूसरी जगह भी हो सकता है। वो मतलब वो तो फिर मैक्रो लेवल पे बात चली जाती है, मगर
वो ये जो चीजें सुपर नेचुरलिज्म में आना शुरू होगी, और इसको क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो हर उस चीज को जो नहीं समझता उसको सुपरस्टिशन कह देता है. So he says, insofar as supernaturalism is associated with the denial of strict causality, I can only answer that is what is the modern scientific development of the question about the theory of यानी वो quantum theory of relativity की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको आगे चल के इस नॉलेज को डिस्कवर करते हैं तो इट इज गेटिंग टुगेदर, और इसमें फिर ऑब्जर्वर का भी काम है. तो फिर वो कहते हैं, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, कि वो कहते हैं कि perhaps the conclusion to be drawn is that the arguments from modern science that religion first became possible for a reasonable scientific man about 1927. तो उन्होंने कहा कि 1927 was the watershed year when you could say that a religious person could also be a reasonable scientific man, क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस को आप लिया है, और कॉन्शियसनेस का क्या ताल्लुक है भाई साइंस के साथ. एंड दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट जो उन्होंने दी. तो उसको चल के फिर आगे इकबाल ने स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि भाई देयर आर, अब जैसे वो एक और जगह कहते हैं इकबाल, द सेकंड पॉइंट इज द unanalyzable wholeness of the mystic experience. यानी वो कहते हैं जो mystic experience होता है spirituality का, it cannot be analyzed. When I experience the table before me, जो मेरे पास table पड़ा हुआ है, it has innumerable data of experience merged into the single experience of the table. इसमें बहुत सी चीजें हैं, atoms हैं, quarks हैं, ये बने हुए, लेकिन मेरे सामने एक table की फॉर्म में आती है ये चीज, और out of this wealth of data I select those that fall into the certain order of space and time and round them off in reference to the table. ये तो sense perception आ गई. In the mystic state, however vivid and rich it may be, thought is reduced to a minimum and such an analysis is not possible. But the difference of the mystic state from the ordinary rational consciousness does not mean that it discontinues with the normal consciousness. वो कहते हैं कि जैसे प्रोफेसर विलियम जेम्स का हवाला देते हैं कि जो रियलिटी है सेंस परसेप्शन से वो पीस मील है, थोड़ी थोड़ी आती है, मगर जो रियलिटी और इंट्यूशन जो एक सेंट को या वली को या इसको मिलती है प्रॉफिट को, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस, बट इट कैन नॉट बी, अब अपना जो जिसको एक्सपीरियंस है वो दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकता या बता सकता. तो इसमें दिस इज काइंड ऑफ अ मर्जर ऑफ फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, गोइंग बैक टू फिलो, जिसने ये कॉन्वर्सेशन शुरू की थी बिटवीन इजराइल एंड द ग्रीक्स. सो आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैटर, साइकोलॉजी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम, इसको हम सुपर साइकोलॉजी कहेंगे, गेस्टॉल्ट या कोई भी, फ्रॉइड ने इस पे ह्यूम ने इस पे काम किया था, होलनेस में चीजें आनी शुरू हो गई. अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स जो है ये मर्ज कर रही है स्पेस. अब क्या हो रहा है कि स्पेस टाइम तो इकट्ठा हो गया, मैंने शायद इसमें जिक्र नहीं किया, मगर क्योंकि न्यूटन के बाद फिर ये जो रिलेटिविटी आई, उसने कहा कि स्पेस टाइम स्पेस एंड टाइम इज वन कॉन्टिन्यूस थिंग, कॉन्टिन्यूम. और इसके अंदर उसने कहा कि भाई आइंस्टाइन ने कि स्पेस और जो आपका टाइम है इट्स आल्सो रिलेटिव टू द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कोई एब्सोल्यूट टाइम. और उसमें आगे चल के बर्गसॉन जो थे, उन्होंने बर्गसॉन ने एक फिलॉसफी थी क्रिएटिव एवोल्यूशन की, जिसमें बल्कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो लेट हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें बर्गसॉन वाज अ फिलोसोफर इन फ्रांस, ही वाज पार्ट ऑफ द नोबेल प्राइज कमेटी. वो नहीं चाहते थे कि भाई इस बंदे को आइंस्टाइन को मिले, क्योंकि वो बर्गसॉन का टाइम जो था वो एक होलनेस का टाइम था. होलनेस से मराद है कि वो कहते थे कि भाई इट्स समथिंग बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जो एक डिवाइन टाइम है, प्योर ड्यूरेशन है. अगर आप किताब पढ़ें, काइंडली स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि रिकंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, तो उसमें आप डिस्कवर करेंगे कि जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, देयर इज अ कॉर्पोरियल वर्ल्ड व्हिच वी सी थ्रू आवर सेंसेस, राइट, बट द फाइंडिंग्स ऑफ क्वांटम थ्योरी जो है वो हमें माइक्रो वर्ल्ड में लेके जा रही है, जो कि इट इज बियॉन्ड द सेंस परसेप्शन. जो अब जैसे ये टेबल है, इसके अंदर जो है एटम है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, आगे क्वार्क्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, इसमें शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं. तो ये जो चीज हमें नजर नहीं आ रही, उसको वो कह रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड है. नाउ दिस इज साइंस इज गोइंग, फिलॉसफी स्पेशली इज गोइंग फ्रॉम कॉर्पोरियल वर्ल्ड टुवर्ड्स द फिजिकल वर्ल्ड, व्हिच इज
फाउंड या उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हम इसमें हमें नजर आता है ये टेबल है, मगर इसमें तो स्पेस बड़ी थोड़ी, वो सारी यानी जो एटम है उसकी तो बहुत स्पेस खाली पड़ी हुई है, और इसको हम इकट्ठा करें तो बहुत थोड़ी सी चीज हमें निकलती है। सो नाउ वी आर सेइंग कि फिजिकल वर्ल्ड के भी पीछे एक वर्ल्ड है जो कि हमारी क्वांटम वर्ल्ड है। प्रोबेबिलिटी जब हम उसको देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, नहीं तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, वेव है। और अब खासतौर पे जो रिसर्च हो रही है, इट्स गोइंग इनटू द ब्रेन कि कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, इसमें हमारी बड़ी स्टडी, क्योंकि हमें डिकार्ट ने he said that there is a res extensa and res cognitus। उसका मतलब ये था, उसने तकसीम कर दिया मैटर में और माइंड में, और इसको कार्टेशियन वर्ल्ड को काफी देर तक जब वो धचका नहीं लगता जब तक ये क्वांटम थ्योरी नहीं आई, आपकी रिलेटिविटी नहीं आई। तो कार्टेशियन जो माइंड और मैटर का जो था वो कॉर्पोरियल वर्ल्ड था, कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो जो हमें नजर आता था। देन वी हैव, जैसे टीवी स्क्रीन, हम टीवी देखते हैं, वो उसमें हो तो कुछ नहीं रहा ना, एक इल्यूजन सा फील होता है। तो उसको डिकार्ट को बड़ा एक तरह से उसकी सर्टेनिटी नहीं आती थी, उसको तो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम, इफ आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसको दूसरे की यानी पहचान, या दूसरे को वो कहता था ख्वाब तो नहीं, अगर मैं ख्वाब भी में मुझे वो चीजें आ रही हैं, मुझे जब जागने में आ रही तो व्हाट इज द डिफरेंस। सो फिलॉसफी वाज हैज मूव्ड। अब तो बल्कि हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज मोर ऑफ अ फिलोसोफर देन द नॉर्मल फिलॉसफी। सो इसमें चल के आगे हम देखेंगे कि जी इसमें बेसिकली ये जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, फिर ये कार्टेशियन की मिस्टेक थी, डिकार्ट की मिस्टेक थी, जिसको बाद में हमने देखा कि जब ऑब्जर्वर बीच में आ जाता है, देखिए ना, ऑब्जर्व करता है, तो वो अब जब हम ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है, वो दो स्लिट में से गुजरता है ना, अगर जो जाता है तो वो वेव होती है, तो एक पार्टिकल दो जगह से कैसे जा सकता है, ये तो इम्पॉसिबिलिटी है। There are certain concepts of quantum physics which are very weird। और जैसे एक स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस है, एक क्वांटम स्टेट जो मिली नहीं है, उसको आप सेपरेट करते हैं, मे बी देयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट दे स्टिल कैन इंटरैक्ट इंस्टेंटेनियसली। आप देखते हैं कि एक स्पीड ऑफ लाइट है 1,46,000 मील पर सेकंड है, तो उसका इफेक्ट लोकल होगा, तो वो एक सेकंड में, 1.5 सेकंड में चांद तक पहुंच जाएगी, मगर वो लाइट या 43 मिनट्स में जुपिटर तक पहुंचेगी। मगर ये क्या फिनोमेनन है, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में देखा है, और इसको प्रूफ भी हुआ है। इसको चाइनीज ने प्रूव किया है सैटेलाइट के थ्रू, जमीन से लेके कोई 1200 किलोमीटर तक, माइल तक, जिसमें वो एक सैटेलाइट को उन्होंने प्रूव किया कि भाई ये इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको चेंज आते हैं, फौरन उसमें आती है। यानी अगर एलिस और बॉब कोई आपस में करते हैं कि भाई, वो कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल एक पेयर ऑफ सॉक्स है, तो वो अगर एलिस जो है वो रेड सॉक देती है, तो उधर दूसरी तरफ जाके भी वो एकदम वो यानी बॉब जो है यूनिवर्स के अक्रॉस है। यूनिवर्स अब हम कितना डिस्टेंस है, बहुत बड़ा है हमें, लेकिन चूंकि वो तो हम एक्सपेरिमेंट अभी नहीं कर सकते, हमारे से तो बाहर गई नहीं है। मगर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन हैज बीन प्रूव्ड बाय द चाइनीज। So there's another concept which is quantum entanglement, superposition, entanglement। और superposition का ये है कि आपको एक फोटोन चलता है सन से, तो वो, और ये यानी कुरान में भी जिक्र है कि हमने मुसखर कर दी उनके लिए फोर्सेस, और उनके लिए फोर्सेस हमने जब मुसखर की, तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये खाली लेबोरेटरी तक नहीं महदूद रही, अभी क्वांटम कंप्यूटर्स में काम आ रही है। अब ये काम आ रही है आपके जो क्वांटम कंप्यूटर्स में काम आ रही है। फिर जो आपकी माइंड साइंसेज है, माइंड साइंसेज में अब वो आगे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भी क्योंकि पहले बायोलॉजिस्ट नहीं मानते थे, इन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि वो उसमें माइक्रोट्यूबल्स है, ये काम है रॉजर पेनरोज का और डॉक्टर हैमरऑफ का। तो अगर हमारे पास कोई जैसे लाइब्रेरीज है हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, खासतौर पे ये जो है जो ये फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी का मर्जर जो है, एंड इकबालियन थॉट, दिस इज मोर फॉर आवर यूथ हु आर इम्प्रेस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट कि भाई देयर इज नथिंग बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। जबकि हमारा जो ईस्टर्न मिस्टिक थे और ईस्टर्न ट्रेडिशंस थी रिलीजन में, वो पहले पहुंच गई थी। अब वो जो बुद्धिस्ट है दलाई लामा इज सेटिंग अप अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन इन जॉर्जिया अमेरिका, एंड आल्सो इन धर्मशाला जो उसका अपना है, एंड ही इज प्रमोटिंग फिजिक्स। कहता है मैंने सारे कॉलेजेस में फिजिक्स पढ़ानी है आपके इंडिया में जो धर्मशाला है। सो मुसलमान इसके बड़े पीछे हैं अभी,
और खासतौर पे आई एम द मे बी द फर्स्ट वन ट्राइंग टू, ये जो मैं इसको अवेयरनेस क्रिएट करूँ, 4 साल मुझे हो गया, मैं सभी अनवर साहब हमारे लम्स के, उनके साथ भी काम किया है टू होल्ड लेक्चर्स एंड टॉक्स के फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इज मर्जिंग। एंड इकबाल ने, आप देखें इकबाल ने 100 साल पहले उनका कितना ज़हन था जरखेज की, जो साल पहले उन्होंने इन बातों को हमें पॉइंट आउट किया था टूवर्ड्स दिस एंड वहादत, बट वी आर वेरी लैकिंग स्टिल कि हमने, हमारी किसी यूनिवर्सिटी में काम नहीं हो रहा, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द बुक्स। मैंने सभी अनवर साहब को भी दी थी 8-10 बुक्स, क्वांटम एनिग्मा, साइकोलॉजी, सूफीज़्म, ये इब्न अरबी रहमतुल्लाह का बड़ा काम था, शेख इब्न अरबी का। तो ये हमारे जो सेज थे, सेंट्स थे, क्योंकि अब हमें लाजमी हो गया कि हम फिजिक्स की ऑनस्लॉट को अगर रोकना है या वेस्टर्न एथिज्म को रोकना है, तो हमें इन सब्जेक्ट्स को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉल्स मेटाफिजिक्स थी जो कि डिकार्ट की थी, और उसमें हमें जो फाइंडिंग्स ऑफ क्वांटम थ्योरी है वो हमें बता रही है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट इल्यूजन नहीं है। क्योंकि देखें ना, वो आयत जो मैंने अभी पढ़ी थी, यानी वो अल्लाह ताला की ये मतलब ये आयत बताती है कि ज़मीन आसमान में इशारे हैं और इसके स्ट्रक्चर में यूनिवर्स के, और ये वो लोग है, देखिए उसी आयत में कि ये जो जिक्र करते हैं रिमेंबर यू नो फर्स्ट करून या अस्कर को, तो ये सिर्फ हमने इसको बुक ऑफ रिचुअल्स बना दिया कुरान का, बट इट्स बुक ऑफ विजडम, हिकमत, एंड देयर सो मच डायरेक्शंस के जो कि हमें बता, एंड दिस इज ट्रेडिशन इज आल्सो फाउंड इन बुद्धिज्म एंड टाओइज्म, जो कि जब ये क्वांटम फिजिक्स 20s में आके लेक्चर दिया इन्होंने ईस्ट में आके, इन्होंने देखा कि इनके यहाँ तो पहले से मिस्टिसिज्म में चीजें जो कॉन्शियसनेस की हैं वो, और अभी हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं कि वो टेलीकिनेसिस कर लेते हैं और दे हैव द एबिलिटी टू रीड माइंड्स। तो ये साइंस, माइंड साइंसेस, माइंड एंड मैटर का एक इंस्टीट्यूट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, विच इज बीइंग हेड बाय ब्रायन जोसेफसन। उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, तो he said that the scientists have formed their own club and they don't let anybody in. उन्होंने एक अपनी इजारादारी सी बना ली है साइंटिस्ट ने, और वो यानी वो कहते हैं they think they know but they don't know। और ये बड़ी जो स्टडी है, इसमें डेविड बोम साहब हैं एक, उन्होंने he passed away but he did write a book and that was implicate and explicate order, wholeness में वो देख रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि अब नेक्स्ट जो मर्जर है स्पेस एंड फिजिक्स का, वो होगा स्पेस टाइम मैटर एंड कॉन्शियसनेस। वो सो ग्रेविटी जीआर यानी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ग्रैंड जो मर्जर होगा वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस, दिस इज मूविंग टू दैट स्टेट। जो ऐसे हमें यानी जो डायरेक्शन दे रहा है। फिर इसमें काम काफी है सैन नसर साहब का, उनकी भी बुक्स लाने की जरूरत है, डॉक्टर सैन नसर। वो कहते हैं कि देयर इज अ सब्जेक्टिव टाइम which is experienced directly by the consciousness of the human subject without any external measurement। देखिए ना, measurement की जो टाइम की है ना, एक और टाइम की बात कर रहे हैं कि जो consciousness के थ्रू measure होता है, and nor in fact any quantitative measurement of the inner time। इस inner time की वो बात कर रहे हैं, जो कि बर्गसान ने उसको pure duration का, और ये वो कहते हैं कि इसकी measurement is impossible। This is the subject experience subjective, यानी वो टाइम जो उसको the individual subject can experience subjective time, और उसको वो यानी वो सेंस परसेप्शन से हमें निकलना पड़ेगा। एवरीथिंग इज नॉट सेंस परसेप्शन बट समथिंग बियॉन्ड, जो कि यानी हमें क्वांटम की जो फाइंडिंग्स हैं, देखिए ना, वो बर्कली था, बिशप बर्कली, ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट। ये उस जमाने में 18th सेंचुरी में गालिब ने भी ये बात की थी कि शायद शहूद मशहूद एक है तो फिर गैर क्या है, यू नो द वादत, एंड देन अगेन बिशप बर्कली आल्सो टॉक लाइक दैट। और इसको फिर एक स्कॉलर थे जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑब्जर्वर जो है वो बड़ा जरूरी है, और ऑब्जर्वर ही रियलिटी क्रिएट करता है। इवन इन साइंस व्हेन फ्यू पीपल गेट टुगेदर एंड द साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन, दे क्रिएट न्यू थ्योरीज। एंड सिमिलरली जो हमारा मिस्टिकल थॉट है, उसमें भी जब वो एक सूफी की महफिल है, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, देन देयर इज अनदर डायमेंशन व्हिच ओपन्स अप
और उसमें वो अक्सर इन्होंने देखा है कि these people are connected somewhere outside space and time. और इकबाल ने यही कहा था कि the greatest achievement of a Sufi is to transcend serial time and connect it with the divine time. यानी वो इकबाल की जो कॉन्सेप्ट थी कि जो एक मिस्टिक की हाईएस्ट अचीवमेंट है, वो एबिलिटी है, वो टू ट्रांसेंड सीरियल टाइम एंड कनेक्ट टू द डिवाइन टाइम. इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक दफा उन्होंने जिक्र किया था, तो मियां बशीर साहब थे, इज गाइड who could see his past, present and future. This is a very hard thing to understand and believe, but ये एक observer जो है, जिसको हमारे इशफाक साहब ने बड़ा काम किया था. उन्होंने कहा कि जी यू नो कि अब हम साइंस के थ्रू, खासतौर पे क्वांटम फिजिक्स के थ्रू इस साइड पे आएंगे, और जब मोहित तौहीद के मुकाम पे पहुंचता है तो ना मोहित रहता है ना तौहीद रहती है. सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. और वो कहते हैं कि फोटोन की साख को देखे बगैर, दिस इज व्हाट इशफाक साहब सेड. आई यूज्ड टू सिट विद इशफाक साहब व्हेन आई वाज यंग. इशफाक साहब, मैं और अली फरामी साहब, एक यहाँ पे मिस्टिक थे नूर वाले, उनके पास हम बैठा करते थे. आई वाज 20 years old back in 1974, and then I moved to Kahuta. I worked there from 1980 to 95. 15 साल मैंने काम किया था in physics. But then that spirituality maybe it got activated. And so ये एक कुछ चीज़ें इसमें हमें देखनी पड़ेंगी. और इसमें एक जो है वो फिर उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है. इसमें मिस्टिसिज्म में स्टेट ऑफ एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, बस्ट और कब्ज और पेन, सेपरेशन, ये जो सारी चीजें, ये एक 2000 year old स्टडी है. दिस इज नॉट न्यू, बिकॉज ये जूइश कबाला, माइस्टर एकर्ट इन क्रिश्चियनिटी, ये सारे लोग इसको देख रहे थे. अब जो कि लेटेस्ट है क्वांटम ब्रेन डायनामिक्स. अब हम आने की होता कैसे है. विलियम जेम्स ने किताब लिखी द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस. सो दैट वाज बैक इन 1900, अर्ली 1900, कि हमारा जो एम्पिरिकल डाटा, ये तो हमें आ रहा है सेंस परसेप्शन से, मगर ये कुछ और भी जो चीजें मिल रही हैं जो मिस्टिक के पास हैं, वो या और ट्रेडिशंस के, वो कहाँ से आती हैं. सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस विद, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक प्लेटफॉर्म है. इट्स नॉट लाइक, मैं समझता हूँ कि कॉन्शियसनेस जिसमें हमारी मोनेस्टिक फिजिक्स आती है, न्यूरल फिजिक्स, मोनिज्म क्या है, होलनेस आ रही है. और उसमें जो वेस्ट में काम हो रहा है, डॉक्टर डेविड चार्ल्मर्स हैं, उनका क्वांटम मॉडल्स हैं. फिर पेनरोज और हैमरऑफ ने ये कॉन्शियसनेस की 36 से ज्यादा इसकी थ्योरीज हैं कॉन्शियसनेस की, कि माइंड और फिर सोल का क्या उसका इफेक्ट है उसमें. और ये मटेरियलिज्म जो है, अब वो जैसे इकबाल ने शुरू में कहा था कि it is materialism is evading. He says that the present moment is quite favorable for such an undertaking. Classical physics has learned to criticize its own foundations. As a result of this criticism, the kind of materialism which it originally necessitated is rapidly disappearing, and the day is not far when religion and science may discover hitherto unsuspected mutual harmony. आगे चल के वो कहते हैं कि मंसूर हलाज का भी एक्सपीरियंस को आप स्टडी करें साइंटिफिकली. वो probably we should do that and see how Mansoor Halaj could utter such things, and इब्न अरबी ने कैसे उनको जो ये आता था सारा. तो इसमें हमारा देखते हैं कि कोई माइंड एंड बॉडी के बाद पीछे क्वालिटी है. देयर इज समथिंग व्हिच इज जो कि हाइलोमॉर्फिक है. हाइल और मॉर्फिक, ये दो टर्म्स है ग्रीक्स की हैं, कि देयर इज अ एसेंस एंड सब्सटेंस. तो इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा. और जो कॉन्शियसनेस इन द ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो एक could be a global phenomenon, it could be beyond the fields. हमें fields है ना जी सारी, ये ultimately अभी physics जा रही है back to fields. There is electromagnetic field, उसके excitation से इलेक्ट्रॉन होता है और photon, and there is a Higgs field जो कि हमारी इसमें मैटर को क्रिएट करती है. Higgs field जो कि लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर था, उससे उन्होंने डिटेक्ट किया हिग्स बोसॉन, और उनको नोबेल प्राइज मिला था हिग्स को. So this is all a pattern of fields. और अब उसमें काम हार्ट पे भी हो रहा है, दिल में भी, कि उन्होंने देखा कि इसमें एक बेसिकली फीलिंग और कनेक्शन जो इमोशंस हैं, इट इज पार्ट ऑफ द हार्ट एंड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन. सो ये सारा न्यूरल जो असेंबली, न्यूरल असेंबलीज आपके ब्रेन में, इसको एक यानी एक्टिवेट करता है आपका हार्ट. और ये जो सारा कुछ है, बियॉन्ड दैट इट इज अ होलोग्राम, विच इज के होलोग्राम ये है कि होता है कि इसका पूरा एक होलनेस में होता है. कोई आप ब्रेन का एक पार्ट निकाल दें, वो दूसरा पार्ट जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज ब्रेन इज आल्सो होलोग्राम, एंड प्रोबेबली आवर ब्रेन इज कनेक्टेड बियॉन्ड
टू अनदर, जो कि डेविड बोम ने भी कहा कि देयर इज अ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड आवर ब्रेन. सो व्हाट काइंड ऑफ, उसको एक दफा उन्होंने कहा कि मे बी इट्स गॉड, वो इन्होंने कहा, मगर वो चूंकि अगेन दे आर वेरी केयरफुल नॉट टू अटर समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड साइंस, सो वो उसमें रहते हैं, मगर वो कहते हैं इट कुड बी गॉड बट देन इट वुड रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन एंड आवर रिसर्च. सो ये भी एक होलोग्राम की फॉर्म है. और जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे ब्रेन है, लार्ज एरियाज लिट अप ऑफ द ब्रेन एंड डिस्टेंट एरियाज जो है वो उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, मगर वो सारे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं. तो इकबाल का जो हमारा, फिर अगेन वी कम बैक टू इकबाल, एंड वो कहते हैं कि जो मतलब कॉन्टेक्ट विद टोटल पैसेज ऑफ रियलिटी इन विच द डाइवर्स स्टिमुलाई मर्ज विद वन अनदर एंड फॉर्म अ सिंगल unalienable unity in which the ordinary distinction of subject and object does not exist. तो इसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि when they contact with the total passage of reality, उनसे मुराद ये कि होलनेस, वादत, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इनकी मिस्टिकल थॉट में मिलेंगे, इस्लामिक मिस्टिसिज्म में. So I was trying to set up a center like Dabastan Iqbal, so we could work together between the psychologists, biologists, and quantum physicists. लेकिन वो प्रोग्रेस थोड़ी है. मैं बुक लाता हूँ, मैं अमेरिका रहता हूँ, लिव इन फ्लोरिडा, इन सदर्न फ्लोरिडा, इन मियामी, क्लोज टू मियामी. और वहाँ पे हमारे ये दोस्त हैं डॉक्टर इकबाल, ये भी इनटू इस्लामिक मिस्टिसिज्म है. ही इज प्रेजेंटली हियर एंड इज गोइंग टू टॉक ऑन वेडनेसडे इन यूएमटी. तो उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी. डॉक्टर इकबाल फ्रॉम Florida International University School of Divinity, and it teaches divinity and political science. So इकबाल ये कह रहे हैं यहाँ पे कि the contact with the total passage of reality in which the diverse stimuli merge into one another and form a single, analyze नहीं हम कर सकते, unity, which is in which the ordinary distinction of subject and object does not exist. ये वादत है. वादत को आगे फिर उन्होंने डिफाइन किया है, वादतुल शहूद, वादतुल वजूद. So that is hard to understand, मगर वो scientist के लिए, but still it is being studied. And Iqbal studied all this philosophy, all this you know, मैंने इसे जिक्र किया था कि वो रफीउद्दीन साहब थे खालिद, उन्होंने कहा था कि 56 में कि अगर इकबाल की थॉट को हम आगे नहीं लेके जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और उन्होंने फिर यानी पढ़ा, इस थॉट को पढ़ा, बुक में भी लिखा. उस जमाने में चूंकि उनके वक्त में ये सारी क्वांटम फिजिक्स डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने फिर आगे इकबाल कहते हैं, बट द इंडिफरेंस ऑफ द मिस्टिक स्टेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी रैशनल कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन डिसकंटिन्यूअस विद द नॉर्मल कॉन्शियसनेस. और ये भी कह रहे हैं कि बट द डिफरेंस ऑफ द मिस्टिक स्टेट, यानी मिस्टिक स्टेट जो है वो ऑर्डिनरी रैशनल कॉन्शियसनेस से बहुत दूर नहीं है, जो कि किसी को ख्वाब आता है. और हदीस भी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सच्चा ख्वाब 146 पार्ट ऑफ द नबुवा स्टिल अवेलेबल, और इसमें आयते हैं कि अनफुस और फाक में उनको निशानियां दिखाई जाएंगी. सो फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, कुरान, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म को हम देखें अगर इस रेफरेंस में, तो एक होलनेस है जिसको हम वो कह रहे हैं कि बट द डिफरेंस ऑफ मिस्टिक स्टेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी रैशनल कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन डिसकंटिन्यूअस विद द नॉर्मल कॉन्शियसनेस. तो नॉर्मल कॉन्शियस स्टडी कर रहा है, कौन कर रहा है? साइकोलॉजिस्ट कर रहा है. और साइकोलॉजिस्ट अगर मुसलमान होके इसको स्टडी करे और डेवलप अ न्यू कॉन्शियसनेस, तो इसमें वो जो हमें पता चलेगा कि हम स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक बेसिस क्या दे सकते हैं. बात तो सारी उसकी किताब जो आप देखें, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस मर्जर. आगे भी चल के वो कह रहे हैं कि जो हमारा फिलोसफिकल टेस्ट है वो इतना वैलिड नहीं है जितना कि प्रैग्मेटिक है, जो कि जो एक जैसे इकबाल को खुद एक जो रिलीजियस फिनोमेनन उनके पास इनर एक्सपीरियंस था, उसका एक जो टेस्ट है वो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो कि पाकिस्तान की सूरत में निकली. या इसी तरह हमारा जो यानी उनका ये है कि ऑब्जर्वर का बड़ा इसमें वो बात करते हैं, इसमें रोल है. आइंस्टाइन थ्योरी की बात करते हैं. सो व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ इज जस्ट बीन डिस्क्राइब्ड बाय इकबाल. रिलेटिविटी की बात करते हैं. आइंस्टाइन विद आइंस्टाइन स्पेस इज रियल बट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर. फिर वही बात कर रहा है, ही रिजेक्ट्स द न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट स्पेस. The object observed is verifiable. It is relative to the observer. So ये जो मास है, शेप है, साइज है, ये सारा उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो इकबाल ने इसको स्टडी, बर्टन रसल को उन्होंने स्टडी किया, कैंटर थ्योरी को किया. सो विद पासिंग फ्रॉम टू अदर लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस. वो कहते हैं कि अदर लेवल्स हैं, कॉन्शियसनेस के हैं, तो उसको भी आप स्टडी करें. तो दिस इज पार्ट ऑफ हिज टॉक कि वो जो उनका था कि भी जो है इट्स
प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये हमें इसमें ज़रूरी है कि हम इसमें बात करें और आगे चल के फिर देखें कि कुरान की भी एक आयत है कि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। सो दिस इज बेसिकली जो कि वही ऑब्जर्वर क्रिएटेड रियलिटी में आ जाती है कि यू रिमेंबर गॉड एंड देन ही रिमेंबर्स यू एंड हेल्प्स यू आउट। जैसे उन्होंने इसरार खुदी में लिखा कि ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट divine plan and he is an active co-worker. We have stopped becoming co-worker of God, and that is the part which is available to a mystical scientist. The mystical scientist, which is we would say the person who has both knowledge of science and mysticism. So, am I online? Yes, sir. अच्छा, sorry. तो मैं इसको इसी तरह फिर अभी डू बिट ऑफ टाइम, कितना टाइम हमारे पास? सर बस आप करें सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा जी, सॉरी। तो उसमें फिर हम ये बात करते हैं कि ऑब्जर्वर कैसे रियलिटी क्रिएट करता है। वो एक तरह से डिवाइन वादत में होता है और इसमें फिर आगे चल के रॉजर पेनरोज का बड़ा काम है। जैसे मैं कहता हूँ, ही गॉट द नोबेल प्राइज दिस ईयर विच वाज ऑन ब्लैक होल्स, और वो जिक्र करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस, वो बात करते हैं कि कंपटीशन है हमें ओवरकम करनी। कंपटीशन मींस कंप्यूटर कंपटीशन, कंप्यूट करना जो है वो क्या, कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशन। और वेदर इट इज समथिंग लाइक एग्जिस्टिंग साइंस जो हमें बता रही है, बायोलॉजी, सिनेप्टिक कनेक्शन, डेंड्राइट्स, और फिर वो सारा जो ब्रेन की एनाटॉमी है वो होलोग्राम की फॉर्म में। वो कहते हैं कि पेनरोज के ये दो तीन चीजें हैं जिसमें एक कंपटीशन है ब्रेन की, वो ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, इज इट ओनली कंपटीशन और वेदर इज इट अ कॉन्शियस कंप्यूटर, ब्रेन को कह रहे हैं। और ब्रेन जो कोशिश कर रहा है कि कॉन्शियस कंप्यूटर बनाने की, सो इज दैट द कॉन्शियसनेस, और वेदर इट इज एग्जिस्टिंग साइंस जैसे बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और वेदर इट इज एक्सटेंडेड फिजिकल वर्ल्ड व्यू। वो कहते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कोई चीज है। रॉजर पेनरोज, और वो कहते हैं रॉजर पेनरोज ही गॉट द नोबेल प्राइज दिस ईयर, एंड वो कहते हैं कि शायद एक्सटेंडेड फिजिकल रियलिटी जो है वो एक्सटेंड बियॉन्ड आवर ह्यूमन बीइंग्स और अदर यूनिवर्सेस। सो वो उसमें समथिंग आउटसाइड साइंस, तो समथिंग आउटसाइड साइंस हमें नजर आ रही है। और फिर पेन परसेप्शन की बात करते हैं, खाली पेन परसेप्शन होती है, एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो यानी कॉन्शियसनेस की जो स्टडी है वो उसमें हम ग्रीन कलर देखते हैं, पेन देखते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है। एंड इन आवर एवरीडे लाइफ हम जो देखते हैं वो इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स हैं। चेस की गेम आप देखते हैं कैसे उसको एल्गोरिथम के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है, उसकी मैथमेटिक्स के पीछे, टू ऑड नंबर्स कैन बी एडेड टू गेट एन इवन नंबर। फिर वो बात करते हैं रैशनल नेचुरल नंबर्स की, कि ट्यूरिंग एक मशीन थी, ट्यूरिंग एक साहब थी जिन्होंने एक मशीन बनाई थी, मगर हमारी टोटलिटीज के साथ कोई भी इसका ताल्लुक है, खाली कि ये सिर्फ मैथमेटिकल है कॉन्शियसनेस दिमाग। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हमें फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिर वो कहते हैं कि फिजिकल लॉज जो हैं वो विच कैन नॉट बी प्रोग्राम, उसमें वो फिर जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं, ब्लैक होल्स की, और LIGO डिटेक्टर। अभी पीछे इन्होंने डिस्कवरी की थी, जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तो उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं, और वो हमारे पास आई हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। एक LIGO एक साइट है, and it is in Louisiana, I guess, and there's one in up west, and वो उनके दरमियान काफ़ी फ़र्क है। तो उन्होंने जब वो स्पेस टाइम में फ्लक्चुएशन हुई, वो चली वेव, तो वहाँ से यहाँ पहुँची, बड़ा वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि विच प्रूव द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी को प्रूव किया गया इस ग्रेविटेशनल वेव से। तो ग्रेविटेशनल वेव के बाद वो यानी वो बात करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्वांटम फिजिक्स जब आती है तो देन वी हैव अ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो वेव फंक्शन कोलैप्स है, ये इसकी एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है सेकंड डिग्री, और वो कहते हैं कि ये वी कैन जैसे देखें, ये जो माइक्रो वर्ड है इट्स वेरी फजी और प्रोबेबिलिटी है, और जब आप उसको बट यू स्टिल कैन एस्टिमेट कि भाई द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल भी कहाँ हो सकता है, उसमें ज़्यादा उन्होंने कहा कि जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वो एक इक्वेशन थी जो उन्होंने निकाली, और अगेन इट इज कंप्यूटेशनल। फिर अब जो सुपरपोजिशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे चलता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन,
अमेज़न का जंगल है उस पर आता है, और वो चूंकि अमेज़न में जंगल में नीचे फोटोसिंथेसिस होती है किसी सेल में, तो वो एक बड़ी मुश्किल होती है कि वो ऊपर की जो कैनोपी है उससे नीचे आए, और वो तो खत्म हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं चलेगा फोटोसिंथेसिस का, मेकिंग ऑफ शुगर, एंड आल्सो बिकॉज वो वाटर लेता है शुगर बनाने के लिए, और फिर एनर्जी सन से आती है। मगर वो उस फोटोन में ये कैपेबिलिटी है कि व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी वो स्कैन कर देता है सारा, वो इट्स नॉट एट वन प्लेस, इट्स मोर देन वन प्लेस। तो वो सारा वो जो क्वांटम फिजिक्स है, द लॉज ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स आर बेसिकली द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, वो आप ये कह रहे हैं। और ये जो चीजें हैं इसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का वो रोल क्या है, इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका क्या रोल है। तो ये सारा मैं बस इसमें ज़्यादा नहीं बात कर सकता, ये बस इसमें यही प्रिंसिपल इक्विवेलेंस की वो बात करते हैं कि ग्रेविटेशन बेसिकली वो कहते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटेशन की जगह एक प्रिंसिपल इक्विवेलेंस है कि आप टावर ऑफ पीज़ा देखें और आप दो चीज़ें फेंकते हैं, दो रॉक्स, एक हैवी है और एक लाइट है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से डिफरेंट टाइम पे नीचे गिरता है। मगर आप अगर वैक्यूम लेते हैं तो वो दोनों एक ही जगह गिरते हैं, और वो जो इक्विवेलेंस है वो बेस्ड ऑन नॉट ग्रेविटी। तो आगे चल के वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ग्रेविटी इन क्वांटम थ्योरी, वो सारी जो हमारी मर्जर हो रही है, जो फिजिक्स और फिजिक्स की अपनी मर्जर हो रही है ना जी, बिकॉज ये एक जो हमारे पास फोर फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल, वीक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को मर्ज किया था इनटू इलेक्ट्रो वीक फोर्स। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रेविटी क्वांटम स्टेट के अंदर जाके हम जो है क्वांटम स्टेट्स को अलग करते हैं, वो सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, एंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक चौक लेते हैं आप, डायरेक्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है डायरेक्ट, तो वो कहते हैं कि चौक उनके हाथ में, वो एक चौक यहाँ भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, और भी कहीं हो सकता है। तो उसकी वो यानी एक जो वो माइक्रो वर्ल्ड है उसमें तो ये हो रहा है, मगर एक जगह आकर जब चीजें बढ़नी शुरू होती है तो वो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको समझना कि वो क्या आम कहा जाता है कि एवरीबॉडी हैज अ वेव फंक्शन, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि पार्टिकल हैज अ वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर। इसी तरह अब इंसान है, हमें ये देखना है कि इंसान जो है वो भी एक तरह से उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। तो ये एक जो इसमें मैथमेटिक्स भी आ जाती है, हाई फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, हिल्बर्ट स्पेसेस, हिल्बर्ट स्पेस आती है जिसमें वो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि एक स्पेस में यानी डिफरेंट स्पेसेस में वो देखते हैं कि फिनोमेनन जो है वो कैसे हो रहा है, और उसको फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का उसमें वो ये है कि यू कैन नॉट मेजर टू थिंग्स एट द सेम टाइम, अगर मोमेंटम है या पोजीशन है ऑफ अ पार्टिकल, सो उसमें वो इट इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी, एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। तो ये सारी चल के वो चीज़ें फिर वो कहते हैं कि जो मास जो है, मैस, इट डिफॉर्म स्पेस एंड टाइम, और स्पेस एंड टाइम जो है वो आइंस्टाइन, न्यूटन तो कहता था ना जी कि स्पेस जो है टाइम, ये दे आर एब्सोल्यूट, टाइम जो चल रहा है वो यानी हमारे पास टाइम का कॉन्सेप्ट है कि बिग बैंग हुआ फिर टाइम चल रहा है, साइकोलॉजिकल टाइम, अभी आज पिछला प्रेजेंट था, यानी प्रेजेंट पास्ट था, प्रेजेंट है, फ्यूचर अब आएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल टाइम है जो कि हम अक्सर देखते हैं बेस्ड ऑन दी सोलर सिस्टम जो हमारी अर्थ घूम रही है उसके गिर्द। तो इट कुड बी डिफरेंट ऑन मार्स का 23 दिन घंटे का टाइम होगा, सो इट इज नॉट रिलेटिव। और ये आप देखते हैं चल के वो मूवी है बड़ी अच्छी इंटरस्टेलर, देखें तो आप देखते हैं कि वो एक ट्विन्स हैं, और ये रिलेटिविटी का पार्ट है कि दो ट्विन्स हैं, एक ऊपर चला जाता है और उसके लिए वो वापस टाइम स्लो होता है, वापस आता है तो उसका जो भाई है वो बड़ा एज हो जाती है उसकी। सो इट इज ऑल टुगेदर इनटू मर्जिंग ऑफ द जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स, वो कर रहे हैं कोशिश। मगर अब कॉन्शियसनेस जब आ गई है तो कॉन्शियसनेस ने आके एक बड़ा क्रिएट किया एक रेवोल्यूशन, कि उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस डेवलप कहाँ से होती है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटो कॉन्शियसनेस है, ये प्रोटो कॉन्शियसनेस जरूरी नहीं है कि हमारे ब्रेन में, कायनात में भी हो सकती है। और इसको जो हमारा जो ब्रेन है इसमें माइक्रो ट्यूबल्स होती हैं विच आर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो इसमें डॉक्टर हैमरॉफ का बड़ा काम है। तो अगर हम लोग अपनी इंस्टीट्यूशन में ये सेटअप कर सकें इस तरह का कोई स्टडी which would be physics and spirituality under Iqbalian thought and a merger, that would be great. तो मैं इधर तक इसको मुकम्मल करता हूँ बात को। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस। सर आपने बहुत सारी थॉट्स को डीमिस्टिफाई कर दिया हमारी। तो हम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज करे, तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आपका एक क्वेश्चन आया है, उससे पूछ लेते हैं। जी जुबैर, काइंडली अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। जी जी, थैंक यू सो मच निसाम आपका, और डॉक्टर इमरान का भी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। व्हाट अ लवली एंड ग्रेट लेक्चर इट वाज, रियली थॉट प्रोवोकिंग। तो मेरा सर जो बेसिक क्वेश्चन था, जो एक तो खैर मैं एंड पर आया हूँ, ज़्यादा मैं लेक्चर अटेंड तो नहीं कर सका आपका। तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस हद तक ये इम्पोर्टेंट है कि वो इस एक्सपीरियंस से गो थ्रू हों, और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये मैं सिर्फ स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा। जी जुबैर, थैंक यू वेरी मच। आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है। इसमें देखें, जैसे हमें इकबाल को जब हम स्टडी करते हैं, इकबालियन थॉट को, तो वो कहते हैं, तीन बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं ये जो क्वांटम फिजिक्स है और सारी जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिविटी की, क्वांटम फिजिक्स के अलावा फिर हमें स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मैन है। ये तीन हमें वो टास्क देते हैं इकबाल अपनी किताब में। और स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जब स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मैन की वो बात करते हैं, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट उनका 7th चैप्टर आप देखिए उनकी किताब में, इज रिलीजन पॉसिबल, कैन रिलीजन बी पॉसिबल, वो कहते हैं कि उसमें बेसिकली कि हमें फेथ, थॉट एंड डिस्कवरी की 3 स्टेजेस हैं। फेथ का मतलब है कि आपने किसी से कोई चीज सुनी रिलीजन के बारे में, और उसने आपने एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट किया। वर्ल्ड व्यू के बाद आपने उस पर सोचा नहीं ज्यादा कि भाई ठीक है, मुझे पेरेंट्स ने दे दिया है। मगर एक कुछ ऐसे होते हैं जहन को कहते हैं जी, इसको थॉट में लेके आते हैं प्रोसेस में, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, जिसको मैं अमल कर रहा हूँ, इज इट ओके टू फॉलो इट, क्या मैं कहीं भी पैदा हो जाता तो मैं वैसे ही होता है, मैं जो भी मेरे पास डाटा आता है, क्योंकि इट्स मोर डाटा बेस्ड। और जो आपको अक्सर आप देखते हैं कि बचपन से आपके पास जो डाटा आता है, आप उसी पे ज़्यादा एक्ट करते हैं। अगर आप इंक्लाइंड हैं इसको मैथमेटिक्स की, आप गिफ्टेड है, तो आप फिर एआई में चले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे। इफ यू आर गिफ्टेड इन फॉर कोई, आपका कोई डाटा कौन देता है आपको? स्कूल देता है। वो जो क्रिएटिव एवोल्यूशन में भगत साहब भी बात करता है कि पहले तो हमारी स्टेज, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हमें करती है, ट्यून करती है, फाइन ट्यून। उसके अंदर मिस्टिक का बड़ा रोल, तो वो उसमें मिस्टिक का वो बड़ा रोल बताते हैं कि मिस्टिक ही एक्चुअली क्रिएट करते हैं न्यूअर फॉर्म्स ऑफ एम्स, गोल्स। और उसमें जो चूंकि ये जो वर्ल्ड अभी जा रही है साइड पे, जो बाइफरकेट हो गया दोनों, मिस्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज, उसकी वजह से हमारे यहाँ एक गैप आ गया, जिसमें वो इकबाल कहते हैं कि रिलीजन पॉसिबल में अगेन वो उसकी बात करते हैं, फेथ, थॉट एंड डिस्कवरी। अच्छा, थॉट का मतलब यह है कि वो आप कंपैरेटिव स्टडी करें रिलीजन्स की, रिलीजन ने हमें क्या दिया, क्या फायदा दिया, नुकसानात में क्या चीज गई कि वो बड़ी में एब्सोल्यूट को एक तरह से आप हर आदमी समझता है कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो वो फिर फिजिकल भी वायलेंस भी हुई है, और बड़ा वॉर्स भी हुई हैं। क्रिश्चियन आप देखें, उनकी स्टडी करें, काफी बुक्स हैं उस पर। तो जब हम देखते हैं कि वो यानी थॉट में हमें कोई सिस्टम तो नजर आता है ना, मोरालिटी का नजर आता है, कोई हमें सिस्टम आता है कि टू हेल्प आवर फेलो बीइंग। कुछ हमें जो चीजें हैं जो कि इवन हम सोचते हैं कि भाई पार्ट ऑफ दी इवन दी डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट, जहाँ पे एथिज्म का बड़ा रूल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे एथिस्ट के अंदर भी वो चीजें इनकलकेट की जाती हैं। मोरालिटी विच कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू दैट इज पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि हमें इवॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे को ऑपरेट करना पड़ेगा। दे यूज मैनरिज्म,
बचपन में उनको सिखाया जाता है। मगर गोइंग बैक टू अगेन टू योर क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट इकबाल कहते हैं, इसमें डिस्कवरी का जिक्र करते हैं इकबाल, कि जब आपने डिस्कवरी की फेज में पे आप आए हैं, विच इज़ वेरी रेयर। वो रेयर इसलिए है कि उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है, उसके लिए एक स्पेशल यानी रिसिपिएंट की कोई अपनी एबिलिटीज भी होनी चाहिए, वो हर किसी को समझ नहीं आती है, ना वो अता होती है, दैट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग। तो उसके लिए आपको एक, इसलिए मैं आपको पता है 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ही हैं, कि we should construct such a center of excellence where mistakes should meet the scientists. एक बात आगे चल के वो जिक्र करते हैं ना कि साइंटिस्ट इज आल्सो अ मिस्टेक इन द एक्ट ऑफ प्रेयर। ठीक है जी, जब वो प्रेयर की तरफ आता है और फिर वो गौर करता है, वो ऑब्जर्वर क्रिएट करता है, रियलिटी क्रिएट करता है, जो ऑब्जर्वर होता है, एंड दैट इज आल्सो द थर्ड पार्ट विच इज डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में वो जाके चले जाते हैं टुवर्ड्स सेंटहुड, जिसमें वो अहमद सरंदी का जिक्र करते हैं कि उसके शागिर्द ने पूछा एक शेख से कि भाई मैं इस मकाम पे हूँ, तो उसने कहा तुम तो 1/4 भी नहीं अभी पहुंचे। सो वो जो रियलिटी जो आप खुद देखते हैं, द होलनेस देखते हैं, वो आपको जो इनर एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बड़ी सर्टेनिटी पैदा करता है। इमाम गजाली बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, मगर उनको सर्टेनिटी तभी आई वो जब इस पैथ पे आए, उनकी जबान बंद हुई, बोल नहीं सकते थे, 10 साल वो निकल गए। एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। तो इकबाल की जो ये है, अब उसको समझने के लिए हमारे यहाँ क्योंकि उलमा है, सूफिया और साइंटिस्ट है, इनका आपस का इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। उलमा के जो है वो भी एक अल्लाह के वली हैं, वो भी शरीयत के थ्रू और लोगों की हेल्प के थ्रू एक पास है, मगर ये पैथ थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन मकाम और अहवाल। आप निकलसन की किताब पढ़े, मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम पढ़े, वो बड़ी क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर एन मैरी शिमल की किताब है मिस्टिसिज्म पे, वो पढ़े। डॉक्टर मार्टिन लिंक्स की किताब है सूफीज्म पे, सर्टेनिटी पे। तो सर्टेनिटी साइंसदान के लिए बड़ी मुश्किल है, वो नहीं मानता, बड़े उसको क्वेश्चन होते हैं अनलेस ही हैज एन इनर एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो इसमें एक प्री मिस्टिक होता है, हर बंदे की पॉसिबिलिटी है, मगर व्हेन ही बिकम्स अ मिस्टिक यूजुअली थ्रू अ विजन और अ ड्रीम, फिर उसके लिए एक कोई गाइड मुकर्रर हो जाता है। तो अगेन दो तरीके से मैं समझता हूँ कि एक आप उनकी महफिल में बैठे, दे कैन ऑल्सो, दिस इज ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको विलियम जेम्स ने भी जिक्र किया है कि ये कॉन्शियसनेस की स्टेट्स हैं जिसमें वेस्टर्न में भी ये स्टडी हुई है, उनके भी मिस्टेक थे। तो वो इन्होंने देखा कि मुसलमानों की जो बुनियाद है, क्योंकि वो अपनी पहली किताब में वो देखा ना, शुरू का जो पार्ट शुरू करते हैं कि रिलीजन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एन इनर एक्सपीरियंस। वो कहते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं, द कुरान इज अ बुक व्हिच emphasizes deed rather than idea, कि अमल है, and there are however men to whom it is not possible organically to assimilate an alien universe। तो कुछ वो कह रहे हैं कि आजकल के लोग हैं जिनको एलियन यूनिवर्स जो नजर आता है वो उनकी समझ में नहीं आता, मगर उनको वो और बाय रीलिविंग से मुराद है कि उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो वाइटल प्रोसेस है जो हमारे सूफिया समझते थे और तो आज भी समझते हैं, दैट स्पेशल टाइप ऑफ इनर एक्सपीरियंस जो उनको मिलता है, ऑन विच रिलीजियस फेथ अल्टीमेटली रेस्ट। अब अल्टीमेटली रेस्ट से मुराद है कि अगर आप, ठीक है हमारे पेरेंट्स थे, उनको तो इससे नहीं गुजरना पड़ा ना जी, उनको तो बस जो माशाल्लाह उन्होंने बगैर इन किताबों को पढ़े हुए उनको ईमान था, सर्टेनिटी। मगर देयर आर सम पीपल वो कसबी ईमान होता है, फिर आपको कोई यानी उलुल अलबाब का यही रुतबा है ना कि वो अल्लाह ताला के इतने क्लोज हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कुछ ना कुछ उनको दिखाते हैं। देन अगेन असरार खुदी इज द एपिटमी ऑफ दिस थॉट कि इंसान और अल्लाह ताला को वर्कर है। ये बहुत बड़ी थॉट है जुबैर, आप देखें ना कि अगर आप इसमें देखते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है, उसी तरह के लोग आपको मिलवा देता है, उसी तरह की उस आप अपनी किताब खुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं, नॉट कि भाई आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं। तो अगेन वो कहते हैं, देखें वो इनर एक्सपीरियंस यही असल में रिलीजियस फेथ की बेसिस है। मगर वो कहते हैं कि मोर ओवर द मॉडर्न मैन बाय डेवलपिंग हैबिट्स ऑफ कॉन्क्रीट थॉट्स से मुराद साइंस है। तो वो ऐसी हैबिट्स उनकी बन गई जो कि इस्लाम ने पहले अपने ज़माने में इसको हाईलाइट किया था, अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स कल्चर करियर हैज रेंडर्ड हिमसेल्फ लेस केपेबल। अब वो इसका केपेबल नहीं, क्यों नहीं रहा? वो कह रहे हैं कि इसका कसूर सूफीज्म के स्कूल्स हैं जिन्होंने इसको मॉडर्न नॉलेज को नहीं उसके साथ देखा, जिसकी वजह से वो ये डिफरेंस आ गया और बाइफर्केशन हो गई। मगर उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अच्छा काम किया, और अब हमारे काम है मॉडर्न माइंड का कि जो उनके लेटर डे रिप्रेजेंटेटिव हैं सूफिया के मिस्टिक्स के, कि वो मॉडर्न मैन की जो वोकैबुलरी है उसके मुताबिक बात करे।
और वो कब्ज और बस इल्हाम का इशू को नहीं समझ आएंगे. सो वी नीड अ न्यू थॉट मेथड जिसमें वो कुरान को भी में हो और इसी को वो कह रहे हैं कि वी नीड अ मोर साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस रिलीजियस एक्सपीरियंस. मगर वही मैंने आपको कहा कि दो तरीके हैं. एक तो अल्लाह ताला खुद ब्लेस कर देते हैं किसी शख्स को और वो फिर उसका पाथ शुरू होता है, या फिर आप किसी मुर्शिद के या किसी गाइड के उसमें बैठते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे सब आइसोलेट हो गया, हर बंदा अलग-अलग काम कर रहा है, जिसकी बहुत मुझे आई बीन काइंड ऑफ लकी to have a guide and have the experience of inner experience. मैं आपको मुशाहिदे का प्यार मुशाहिदा नहीं होता, but hopefully we are trying to create more of these mystical scientists. So thank you so much, sir. Sir, before winding up, I would like to invite the president of Iqbalian Society, Durra Shahwar, for concluding remarks. Durra Shahwar, please. Sure. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया. No, you are very welcome. It's my pleasure. Thank you for calling me and giving me this opportunity. सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. आपके रिकमेंडेशंस पे ज़रूर हम गौर करेंगे और हम ये फिजिक्स, मिस्टिसिज्म और सारी स्पिरिचुअलिटीज़ का जो आपने बुक्स बताई इनको भी गौर फिक्र करेंगे इन पे और सोसाइटी में भी इसको प्रमोट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनलाइटनिंग अस विद सच थॉट्स. Thank you very much. Thank you, sir. So that's all. Thank you so much. Sir, he's been very kind to me. So looking forward for this interaction, inshallah. I'll be in UMT. मेरे दोस्त आ रहे हैं डॉक्टर इकबाल from Florida. I'll be in UMT inshallah on Wednesday. तो आपसे शायद मुलाकात भी हो जाए. जी जी. Yes sir, inshallah we will meet. Thank you sir. Thank you. Thank you so much sir. You're welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz.